فضائیہ نے دشمن کو چاروں شانے چت کر کے دنیا کو حیرت زدہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم فضائیہ پر پیغام، کہا فضائیہ نے مارکہ حق بنیاد مرصوص میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ فضائیہ کی ناقابل تسخیر کثیر الجہتی جنگی صلاحیتیں ان کی جدت کا ثبوت ہیں۔ فخر ہے کہ فضائیہ نے اپنی تابناک تاریخی روایت کو زندہ رکھا۔ فضائیہ نے ثابت کیا کہ دشمن کبھی جذبے کو شکست نہیں دے سکتا۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم دفاع پر عوام پرجوش، دینی اور ملی جذبات عروج پر۔ پاک فوج کو سلام، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ امام الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنے کا پیغام۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ کراچی سے آزاد کشمیر تک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیاں اور جلوس نکالے گئے۔ فضاؤں میں درود و سلام کی صدائیں، سرور کونین کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا گیا۔ شرکا نے آقائے دو جہاں سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔ گھر، گلیاں، محلے، مساجد، شاہراہیں اور عمارتیں رنگ و نور سے جگمگا اٹھیں۔ گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کے خوبصورت ماڈل توجہ کا مرکز بن گئے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل کا بھی انعقاد۔ ملکی سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کی دعائیں مانگی گئی۔ پاکستان کا فلسطین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، ہر سفارتی فورم پر فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے پوری قوت سے آواز بلند کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فلسطینی صدر کے مشیر برائے مذہبی امور اور شرعی عدالت کے چیف جسٹس محمود صدیقی کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا فلسطینی بہادری سے اسرائیلی جارحیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی قابض افواج کے ہاتھوں انسانی ساختہ قحط کا شکار ہیں۔ پاکستان غزہ کے لوگوں کے لیے انسانی امداد کی فراہمی جاری رکھے گا۔ فلسطینی صدر کے مشیر نے ملک میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا اور صدر محمود عباس کی جانب سے خط بھی وزیر اعظم کو دیا۔ وزیر وسلم کے جلوس میں شرکت، کہا یہ دن ہمارے لیے عید سے کم نہیں، اس دن اور پاکستان اور پورے عالم اسلام کے لیے دعائیں کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پوری کائنات کے لیے باعث رحمت اور سعادت ہے۔ نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہر کامیابی ہے۔ پشاور میں سیرت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رول ماڈل ہیں۔ آج تمام مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں تو مسائل حل ہوں گے۔ کراچی کے نشتر پارک میں عید میلاد النبی کے مرکزی جلوس کا انعقاد۔ جماعت اہل سنت کے سربراہ شاہ عبدالحق قادری، علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی، حاجی حنیف طیب، سروت اعجاز قادری اور دیگر علماء کرام نے خطاب کیا۔ شہر میں جمعیت علماء پاکستان اور دیگر تنظیموں کی جانب سے بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ یوم دفاع پر راولپنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر تقریب، چیف آف جنرل سٹاف نے پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ یادگار شہداء ملتان، گجرانوالہ اور کھاریاں گیرزن میں تقاریب، یادگار شہداء پر چادریں چڑھائی گئیں۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش، غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کور کمانڈر لاہور کی یادگار شہداء پر حاضری، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے یادگار شہداء پر سلامی پیش کی۔ بہاولپور گیرزن میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پشاور میں کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ گوادر میں بھی یادگار شہداء پر تقریب۔ کوئٹہ گیرزن میں ہوئی تقریب میں کور کمانڈر بلوچستان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ سکھر میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب میں 300 فٹ اونچائی پر سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ دادو، عمرکوٹ اور جامشورو سندھ یونیورسٹی میں بھی ریلیاں اور تقریبات۔ حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، کوٹدو میں بھی یوم دفاع پر جلوس اور ریلیاں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ سیالکوٹ میں یوم دفاع کے موقع پر سیالکوٹ قلعے پر ہلال استقلال کی تبدیلی کی تقریب۔ یوم وزیر دفاع خواجہ آصف نے خطاب میں کہا کہ بنیاد مرصوص آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بلوچستان میں قلات نوشکی اور قلعہ عبداللہ سمیت مختلف شہروں میں ریلیوں اور دعائیہ تقریبات۔ اگلی دفعہ اسکور 60-0 ہوگا، 6-0 تک محدود نہیں رہے گا۔ پاک فضائیہ ہر محاذ پر تیار ہے۔ پاک فضائیہ عوام کی امیدوں پر پوری اتری، عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان کا یوم دفاع پاکستان پر خطاب، کہا بنیاد مرصوص نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کی۔
तकनीकी जिद्दत ने पाक फ़ज़ाइया को दुनिया में मनवाया। यौम दिफा पर मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान बेस के दस्ते ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक बहरिया की जानिब से भी यौम दिफा भरपूर जोशो जज्बे से मनाया गया। इस्लामाबाद में पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। कराची और लाहौर में भी तकारीब का इनेकाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, अब उसके लिए हम दुनिया के किसी मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं हैं। हमारे अपने दिफाई इदारे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के वेपन्स की हमारे पास टोटल रिलायंस है। तो इंक्लूडिंग मिसाइल्स, हर चीज़। पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से लैस है। फ़ज़ा, समंदर और ज़मीन पर दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं। पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस कोमोडोर राव अहमद इमरान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक को खुसूसी इंटरव्यू। जंगी जहाज़ PNS तैमूर पर जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर को बताया कि हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों के लिए हथियारों से कम नहीं है। कैपिटल टॉक स्पेशल नेवी डे पर पीर की शब 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। ISPR ने यौम दिफा पर नया नगमा अल्लाहू जारी कर दिया। साहिर अली बग्गा की आवाज़ में नगमे में पाक फौज की बहादुरी और पाकिस्तानी कौम के जज्बे को खराज तहसीन पेश किया गया। ISPR ने 6 सितंबर 1965 पर नई डॉक्यूमेंट्री भी जारी कर दी। डॉक्यूमेंट्री में जंग सितंबर के गाजियों की लाजवाल दास्तान उनकी ज़बानी पेश की गई है। जंग में दरियाए चनाब पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 4,88,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कई बस्तियां पानी के घेरे में आ गई। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में जमींदारा बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली एक कश्ती उलट गई। खातून और 3 बच्चे डूब गए। एक बच्चे की तलाश जारी। 25 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में सवार अफराद को सैलाब मुतासरा इलाके से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था। रेस्क्यू पॉइंट्स पर छोटे बच्चों के लिए लाइफ जैकेट्स मौजूद न होने की इत्तला। बहावलपुर में दरिया सतलज में सैलाबी रैला बिखरने लगा। जमींदारा बंद टूटने से पानी मुल्हिका बस्तियों में दाखिल। सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान, हुकूमत से मदद की अपील। बहावल नगर में सैलाब से 143 देहात मुतासिर, 1 लाख से जायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के सतह में कमी मगर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। दरिया रावी में माई सफूरा के बंद से निकलने वाले रैले ने कबीर वाला के 40 देहात को डुबो दिया। 80,000 से जायद लोग बेघर, फसलों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। सरकारी इमारतें भी सैलाब की जद में आ गई। थोड़ा बहुत जो उठाया बकाया वो पानी आ गया, फिर कुछ अंदर पड़ा हुआ, कुछ बस उठा लिया। कोई हमारी मजबूरी है, अब हम यहीं पड़े, ना कोई रोटी है, ना कोई पानी, ना कोई कुछ, ना कोई कैंप दिया, कोई बताने नहीं आया। मुल्तान में सैलाब से मुतासरा कासिम बेला का मकीन अब्दुल सत्तार दोहरी परेशानी में मुब्तला। एक तरफ गुर्बत तो दूसरी तरफ सैलाब से घर शदीद मुतासिर हुआ। बच्चे और खवातीन कई फीट पानी से परेशान। अब्दुल सत्तार अब तक हुकूमती इमदाद और रेस्क्यू का मुंतजिर, घर का सामान बचाने की कोशिश में मसरूफ। गुजरात में बारिश के 4 रोज गुजरने के बाद भी शाहराहों और गली मोहल्लों में पानी जमा। फवारा चौक, जेल चौक, कचहरी रोड, जिना रोड, प्रिंस रोड, मोहल्ला बख्शू में अब भी पानी मौजूद। कमिश्नर गुजरावाला का कहना है कि शहर में 6 अजला की मशीनरी और अमला निकासी आप के लिए काम कर रहा है। डिस्पोजल स्टेशन फाल हैं। कई इलाकों में पानी में कमी हुई है। गलियों में खड़े पानी को भी जल्द निकाल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों के फ्लड रिलीफ कैंप्स में बीमारियों से बचाव के स्प्रे, मच्छर मार, जरासीम कुश और डेंगू से बचाव के स्प्रे किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने डेंगू से बचाव की मुहिम मुसलसल जारी रखने की हिदायत कर दी। कचरो खाली करे, पक्के ते अचो। बाहुकुम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, जाम शोरो जो नोटिफिकेशन है, कचरो खाली करे, पक्के ते मुंतकिल थी वञो।
गुड्डू बैराज पर आज बड़े सैलाबी रैले की आमद का इम्कान। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। सेवन में दरियाई बेल्ट के मकीनों से इलाका खाली करवाने के ऐलानात। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का कहना है कि सैलाबी रैले से निपटने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह का सखर बैराज का दौरा। कहा पंजनत और गुड्डू बैराज पर सैलाबी रैला पहुंचेगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आपाशी अफसरान ने बताया कि हिफाजती बंद की कमज़ोर जगहों पर काम चल रहा है। सखर बैराज को कोई खतरा नहीं है। मुल्तान में शेरशाह फ्लड बंद पर पानी का दबाव मुसलसल बरकरार। जंग में हेड तरीमों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सिंध के शहरों उमरकोट, थरपारकर, टंडो मोहम्मद खान में मानसून की बारिशों का आगाज। महकमा मौसमियात ने 11 सितंबर तक मीरपुर खास, सांघा, टट्टा, बदीन, जामशोरो, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में आज शाम से जुमेरात तक वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने तेज़ बारिशों से अबन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। NDMA ने अगले 2 रोज़ के दौरान जनूबी पंजाब के शहरों बहावलपुर, बहावलनगर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान और सादिकाबाद में तेज़ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। कहा शदीद बारिश से पहाड़ी नदी नाले पे फरने और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। अमरीका की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी। अमरीकी तैयारों में इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंचाया गया। खैमे, डी वाटरिंग पंप और जनरेटर शामिल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और कमांडर सेंटकॉम एडमिरल ब्रेट कूपर ने इस्लामाबाद में इमदादी सामान पाक फौज के हवाले किया। इमदादी सामान पाक फौज के फ्लड रिलीफ कैंप्स के जरिए सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। एडमिरल कूपर ने कहा कि यह मिशन दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। नूर खान एयरबेस पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने सैलाब मुतासरीन के लिए गहरे दुख का इजहार किया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े होने पर अमरीकी हुकूमत और अफवाज के शुक्रगुजार हैं। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुजरांवाला और सियालकोट में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल्स SMW4 और IMV केबल्स में खराबी के बायस बैंडविड्थ जुज़वी तौर पर मुतासिर। तर्जुमान PTCL का कहना है कि केबल्स कटने से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। मसरूफ़ तरीन औक़ात में इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर हो सकती हैं। मुतबादिल बैंडविड्थ के जरिए सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा है कि अलीमा खान पर अंडा फेंकने की मजम्मत करता हूं। जिस तरह की सख्त जेल मरियम नवाज ने काटी, बानी PTI 15 दिन नहीं काट सकते। बानी PTI को जेल में तमाम सहूलियात मैसर हैं। रमा साल का दूसरा मुकम्मल चांद गिरन आज रात होगा। पाकिस्तान में भी मुशाहिदा किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होने लगेगी। जुज़वी चांद गिरन का आगाज़ 9:27 पर होगा। मुकम्मल चांद गिरन का आगाज़ 10:31 पर होगा। रात 11:12 पर चांद गिरन अपने उरूज पर होगा। 8 सितंबर की रात 1:55 पर चांद गिरन मुकम्मल इख्तिताम को पहुंच जाएगा। 21 और 22 सितंबर को रमा साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज गिरन होगा। सूरज गिरन का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। मुत्तहदा अरब अमीरात की वार्निंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश रोक दी। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। इमारात ने तंबीह की थी कि मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म किया गया तो यह इमारात के लिए सुर्ख लकीर होगी। और टोरंटो में कॉन्सर्ट के दौरान बरतानवी गुलकारा दुआ लिपा का सरप्राइज। दुआ लिपा ने सूडानी निजात गुलकार मुस्तफ़ा को स्टेज पर बुलाया। दोनों ने नेम ऑफ गॉड परफॉर्म किया। सूडानी निजात गुलकार मुस्तफ़ा ने फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती किया।